Hi friends, welcome to Cricket Caviar. What an historic day at Colombo for Sri Lanka because they managed to tie a match with the world champion Indian side. And it's unbelievable, Shikhar, what panned out in the second innings because this was a perfect total for the likes of Virat Kohli, KL Rahul, a 230 total, and India could not cross it, even though we had such a fabulous start from Rohit Sharma. And this is tied ODI for India after 6 years. 6 years ago, India tied with West Indies at Vishakhapatnam. We both teams scored 321. So we have seen a tied ODI match for India after a very long time. Do you guys want to guess what was the last ODI match which was tied in general, just like the last match? It was वेस्ट इंडीज नेदरलैंड्स That's दैट correct. वाज द टाइड मैच राइट. एंड Match, इंडिया अफगानिस्तान का एक बार टाई हुआ है एक ओडीआई, मुझे ऐसा लग हाँ, रहा है, जो जडेजा, वो भी एशिया कप 2018 में था आई थिंक इफ आई. बट कमिंग टू दिस मैच प्रतीक, first of all, Sri Lanka were really motivated. How they lost in the last two T20s, hmm, how they, especially the third T20 where Rinku and Sky actually defended those runs. hmm, I think it was just too much for them, and Sanat Jasuria must have given a hard message to them hmm, to rain down fire today hmm, on Indian batsmen. And uh, even when they started the game, I felt they were not attacking. Of course, Nisanka again played well, but I yeah, think the main guy was Villalagi. His introduction to the team today yeah, has changed the fortunes around, and he played exceedingly well. Sri Lanka were 101 for 5 at one point of time, and the commentators were actually praising Janith Linayage. yeah, They were praising Janith Linayage because last ODI which Sri Lanka had played versus Bangladesh, there Janith Linayage had मतलब कि बचा दिया था उसने श्रीलंका को hmm, 117 पे 5 से, वो लेके गया था 230 तक. बट yeah, यहाँ पे क्या हुआ कि जनित लिनायके डिड द मोस्ट इडियोटिक थिंग. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन द श्रीलंकन फर्स्ट इनिंग्स, व्हिच आई hmm, एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव मिस्ड बिकॉज yeah, yeah, ऑफ टाइमलाइन. तो श्रीलंकन फर्स्ट इनिंग्स में क्या हुआ कि ऑफ कोर्स दे वर स्ट्रगलिंग अ बिट, बट आफ्टर 30 ओवर्स रोहित ने गिल को बॉलिंग दे दिया. रोहित एक्चुअली बॉल द gave the ball to Gill to bowl, and Janit Linayagi was so happy he smashed him for a six. Then Villalage smashed him for a four, और 14 रन दिए गिल ने. एक ओवर बॉलिंग किए हैं, 14 रन दिए गिल ने. ठीक है, एंड इट वाज अ ब्लंडर. Actually, that gave the momentum to Sri Lanka, and next 2 overs also went for runs. Akshar Patel was smashed, and some other bowler was also smashed. So Sri Lanka were flowing at that time. The runs were coming easy. They were flowing. But अक्षर पटेल के एक बॉल पे जनित लिनायगे स्टेप्स आउट, एंड केएल राहुल के पास कैच गया. केएल राहुल मिस्ड इट एंड इट वेंट टू रोहित शर्मा. और ये बंदा ही जस्ट वॉक्ड. अंपायर डिडंट गिव हिम आउट, नो वन गेव हिम आउट. इंडिया अपील्ड माइल्डली, बट ही जस्ट वॉक्ड. And Sanat Jasuria was furious. And एक और कोच है श्रीलंका का, I don't know his name. He was just furious. और replays में क्या दिखाया गया पता है? He didn't even touch the ball. He just Rohit saw did. कि slip के पास ball है. He had hit the ground. He had hit the ground. He had not hit the ball. He didn't even touch the ball. He would have been not out. Umpire didn't give him out. He just walked like an idiot. Janit Linayagi is such a big idiot, and that costed Sri Lanka 15 to 20 runs today. Hmm, Because Villalage had to bat with Hasaranga. Hasaranga batted well today, to his credit. But if they had Janit Linayage at that time hmm. scoring some runs, they would have surely reached 250, which was above par total on this At pitch this ground, yeah. at भाई this क्या ground. स्टोरी And है ये. and really, man, it was shocking, and I was shocked. But उसके बाद विला लगे, his pronunciation, आज रॉबिन उथप्पा और रसेल आर्नल्ड बैठ के उसका pronunciation ही कर रहे हैं. विला लगे, his विला लगे, वो उसको सिखा रहा है. But he played an exceptional knock, man. जैसे नहीं उसने मतलब लास्ट फर्स्ट में ऑफ अटैक ऑल किया. तो ये इंडिया का पहला ओडीआई मैच है इस साल. मतलब जब आज टीम शीट देखा तो याद आया, अरे ये वेला लगे तो बहुत बढ़िया खेला था लास्ट वर्ल्ड कप में. मतलब याद ही नहीं आ रहे थे प्लेयर्स. एंड दिस गाय आई थिंक इज ओनली 18 or 19 years old. He was a sensation in the last Asia Cup and World Cup, I think, that time. So again, he is very good performance from him. But 230 looked very easy for India. I don't know how. Maybe Rohit Sharma made it look easy. Like, I want to get your feedback Yes. on whether you are very surprised or did you think it was actually a difficult track to score more than 230? नहीं, I think Rohit Sharma actually made it very easy. If you see the first 10 overs, 71 getting
71 in the power play. If you compare it with Sri Lanka, they were 37. So India got a big head start, and Sri Lanka captain was actually confused कि क्या करें. उन्होंने स्पिनर को भी जल्दी दे दिया बॉलिंग, वेलालगे को बहुत जल्दी बॉलिंग दे दिया. और प्रॉब्लम ये हुआ कि थोड़ा इंडिया को ना यहाँ पे समझना चाहिए था कि टर्निंग ट्रैक है, और स्लॉग स्वीप जैसे शॉट्स को अवॉइड करो जितना पॉसिबल है. बहुत बट इफ यू टर्न सी था बॉल. 3 ऑफ द बैट्समैन, रोहित, केएल एंड लास्ट में अर्शदीप भी अगर उसको भी काउंट करोगे, और गिल, 4 बैट्समैन इनफैक्ट चारों स्लॉग स्वीप में आउट, स्लॉग स्वीप करते हुए आउट हुए. एंड दैट वाज द सैड पार्ट फॉर मी कि इनको थोड़ा इंटेलिजेंटली खेलना चाहिए था. फिर भी मुझे लगता है कि वहां पे एंड में दुबे ने बहुत अच्छा नॉक खेला. मतलब कि एक्चुअली दैट वन इट फॉर अस ऑलमोस्ट. मतलब लास्ट में वो एलबीडब्ल्यू हो गया. एक्चुअली वो थोड़ा मतलब टेंटेटिव हो गया लास्ट बॉल पे कि क्या करूं मैं. अच्छा खासा स्लॉग कर रहा था वो, तो लग रहे थे शॉट्स. बट लास्ट में उसको समझ नहीं आया कि मैं डिफेंड करूं क्या करूं. तो उसने जो डिफेंड किया, आई थिंक दैट वाज आउट. और वो थोड़ा अनलकी भी था. इट वाज जस्ट हिटिंग स्टंप्स, नहीं तो इंडिया मैच जीत जाती. और अर्शदीप को यार, कमेंटेटर्स बात ही कर रहे थे कि अर्शदीप क्या करेगा. तो कोई एक कमेंटेटर बोल रहा था कि ही विल वेट फॉर द शॉर्ट बॉल एंड देन ही विल अटैक. But he didn't wait. But he didn't wait. He just went for the slog sweep first ball. But I expected better from अर्शदीप, क्योंकि उसने 2-3 बार ऐसे नॉक्स खेले इंडिया के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड T20 में, स्पेशली जब सिराज इतने समझदारी से बैटिंग कर रहा था दूसरे एंड पे, तो वो बहुत सरप्राइजिंग था. वेलकम अरुण भाई, आपने भी थोड़ा दिखा था क्या इंडिया श्रीलंका का मैच? मैंने मिस किया, बीच बीच में मिस किया, बिकॉज लक्ष्य सेन वाज प्रायोरिटी. वी विल टॉक अबाउट दैट. यस. हाँ, तो वो एक था रीजन. बट आई थिंक मीडियोकर, ये इंडिया टीम एंड श्रीलंका टीम दोनों की तरफ से थोड़ा मीडियोकर परफॉर्मेंसेस है, दोनों की तरफ से. हालांकि श्रीलंका तो बहुत टाइम से मीडियोकर परफॉर्मेंसेस कर रही है, बट आई स्टिल बिलीव कि और अच्छा हो सकता है मैच. Yeah, definitely, I agree. Shikhar, it's a win for Sri Lanka to tie with the world champion team like India today. And मुझे याद है कमेंटेटर्स 4 ओवर पहले भी यही बोल रहे थे कि श्रीलंका इज फेवरेट्स. तो आई एग्री विद शिखर कि दुबे ने एटलीस्ट वहां तक पहुंचाया, टाई करवा दिया. 87 मीटर 6 मारा हसरंगा को. ही शोड दैट ही वाज. यार मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा अपने फेवरेट टॉपिक पे. ठीक है, यू नो व्हाट इट इज गोइंग टू बी. इट इज गोइंग टू बी केएल राहुल. मैं थोड़ा उस पे डिस्कस करना चाहूंगा बिकॉज आई फेल्ट आज उसके पास एक बहुत अच्छा मौका था मैच जिताने का. और ऐसे सिचुएशंस पे ही हम याद करते हैं केएल राहुल को, जब 220 230 चेस करना होता है, क्योंकि 300 तो उसके बस की बात है नहीं. ये हम सबको पता है कि 300 प्लस टोटल्स तो वो चेस कर नहीं पाएगा. बट उसने बहुत बार दिखाया है इन द पास्ट कि वो 220 190. एक बार जडेजा के साथ उसने पार्टनरशिप किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन अ मैच, इन अ होम सीरीज मैच. और फिर हमने वर्ल्ड कप में देखा कोहली के साथ उसने पार्टनरशिप किया था व्हेन रोहित एंड एवरीवन गॉट अर्ली इन द फर्स्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप इटसेल्फ. तो ऐसा मौके पे नॉर्मली वी हैव सीन केएल राहुल डिलीवरिंग. तो आज उसी के पास मौका था कि टू सील दैट प्लेस. बट मुझे लगा वहां पे अक्सर वाज एक्चुअली, एक चीज मुझे सरप्राइजिंग लगा कि जब ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, नंबर 4 अक्सर आया था आज. वो ही हाँ, असलंका वो बोल्ड लॉट ऑफ ओवर्स टुडे. असलंका एक्चुअली सरप्राइजिंगली बोल्ड लॉट ऑफ ओवर्स टुडे. और असलंका पे भी स्ट्राइक अक्सर ही रख रहा है. और केएल राहुल इज जस्ट गेटिंग ऑफ द स्ट्राइक. व्हेन केएल राहुल वाज, इट टुक 33 बॉल्स फॉर केएल राहुल टू हिट अ 4 और अ 6. देख, दुबे भी उसी पिच पे बैटिंग किया है, रोहित शर्मा भी उसी पिच पे बैटिंग किया है, सब लोग, कोहली भी उसी पिच पे बैटिंग किया है. बट आई डोंट थिंक इतना नेगेटिव अप्रोच. इवन अक्सर, आई विल क्रिटिसाइज इवन अक्सर, वो बहुत ज्यादा सॉरी, सुंदर वाज एट 4. मैं अक्सर बोल दिया, या वो बहुत वियर्ड था एक्चुअली. आज सुंदर को 4 पे ट्राई किया. ठीक है, दे वांट टू प्रमोट, मच डिजर्व प्रमोशन फॉर सुंदर, ठीक है. बट वहां पे मुझे लगता है ये लोग थोड़ा बॉक डाउन हो गए. क्योंकि आई डोंट नो प्रतीक, इफ यू कैन टेल मी द पार्टनरशिप, बिकॉज आई सॉ दे वर 28 ऑफ 58 डेफिनेटली बहुत स्लो पार्टनरशिप था. 49 उसके बाद मैंने देखा कि कुछ चौके लगे, उसके बाद भी 49 ऑफ 81. 15 ओवर में सिर्फ 57 रन बनाए थे उन दोनों ने मिलके. हाँ, तो लेस देन 4 रन ओवर इन 90, मतलब 90 बॉल्स में. तो ये 50 से भी कम का स्ट्राइक रेट है मतलब पार्टनरशिप का. तो वहां थोड़ा सा रिस्क लेते तो यार, क्या पता वो 1 रन वहीं बन जाता जो 1 रन लास्ट में नहीं बना. तो वहां पे अननेचुरल रन स्कोरिंग है ना, पैटर्न है, मतलब कि वो थोड़ा वही बात है. बट या हसरंगा बोल्ड रियली वेल. यार, ही गॉट बिग फिश. एक चीज, मतलब 43 balls and 31 runs and 2 fours, nothing else.
That is what KL Rahul was score was today. तो क्या हम लोगों को बहुत आदत लग गई है T20 की, या मतलब वो इट्स ओके स्कोर बट फॉर केएल राहुल ने तो वर्ल्ड कप में भी इससे घटिया खेला है ना, तो इसकी आदत जरूर होती बाउंड्री है। स्कोरिंग प्रॉब्लम है ना केएल राहुल का, बाउंड्री स्कोर ही नहीं करता है। क्या है, हाँ बाउंड्री स्कोरिंग एंड टुडे ही रोटेटेड स्ट्राइक बेटर देन अक्षर, इतना तो मैं बोलूंगा। लेकिन अक्षर ने एटलीस्ट क्या किया, कमांड लिया इनिंग्स का। मुझे लगा अक्षर वाज मोर इन कमांड, क्योंकि वो थोड़ा क्रिटिकल फेस था एंड ही वाज लाइक कि मैं स्ट्राइक लूंगा, मैं मारूंगा, रिलीज शॉट, प्रेशर रिलीज शॉट, वो सब। तो उसने ज्यादा कमांड लिया। केएल वाज जस्ट प्लेइंग सेकंड फिडल, और यही आदत मुझे केएल की अच्छी नहीं लगती है कि अगेन इवन इन दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप when you are with a batter who is much less skilled than you, you are with batting with अक्षर पटेल, you are not taking the initiative। जबकि विराट ऐसा कभी नहीं करता। अगर वो अक्षर के साथ बैटिंग कर रहा होता या रोहित अक्षर के साथ बैटिंग कर रहा होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। he would have taken more strike, more initiative। हो सकता है एक एंड पे मेडन भी खेल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन एक एंड वो खेलता, मेक श्योर कि अदर बैट्समैन आल्सो मैं प्लेज बहुत नया हूँ पैनल के लिए, बहुत नया हूँ पैनल के। मैं आप तीनों से जानना चाहता हूँ, हाउ डू यू रेट विराट कोहली ऑन अ स्केल ऑफ 10? फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा। जैसे हम T20 में थोड़ा लो रेट करते हैं, बट बाकी 50 ओवर्स ओडीआई 9 विराट कोहली। ओके नहीं, ओडीआई में मेरा ओपिनियन है कि इवन टेस्ट से भी, टेस्ट और T20 में आई डोंट रेट हिम एज हाई एज इट यूज्ड टू बी अर्लियर, बट ओडीआई में मैं बोलूंगा कि ही स्टिल द की प्लेयर फॉर वन ऑफ द बेस्ट फॉर इंडिया। Yeah, और T20 वर्ल्ड कप में भी जैसा उसने खेला, मतलब कि देखो भले ही रन्स नहीं बने, एटलीस्ट ही प्लेड एंड गॉट आउट, मतलब अर्ली। तो मुझे ओवरऑल उसका ये अडेप्टेबिलिटी अच्छा लगता है कि वो कोई भी सिचुएशन पे, मतलब कि कोई भी फॉर्मेट में अडेप्ट तो कर लेता है। टेस्ट में ही हैज बीन पुअर लास्ट 3-4 इयर्स, टू बी ऑनेस्ट। टेस्ट में ही हैज बीन पुअर, ही हैज बीन रियली पुअर, क्योंकि सब उससे आगे निकल गए। रूट, केन, स्मिथ, सब उससे काफी पीछे थे, और सब उससे, स्मिथ खाली आगे था, बाकी सब पीछे। आई ऑल्सो फील कि कोहली एक बिग गेम प्लेयर है, मतलब वो डरता नहीं है किसी से। ही जस्ट कैन लाइक ही कम इन अ बिग प्रेशर मैच सिचुएशन एंड वो खेलता है। नहीं खेल पाएगा, आउट होता है। ऐसे वो शेल में घुस नहीं जाता लाइक केएल राहुल कि मैं सामने वाला खेलने दो, मैं जब मेरा थोड़ा सा हो जाएगा मैं 1-2 ट्राई करूंगा। आई थिंक कोहली इज अ डिफरेंट लीग। केएल कोई कैलकुलेशन नहीं करता, यही प्रॉब्लम है। वो पूरा सर्वाइवल गेम में चला जाता है। एब्सोल्युटली बाय द वे गाइस, आज मैं सोच रहा था कि शिवम दुबे में भी एक्चुअली ओडीआई प्लेयर बनने के स्किल्स हैं। शिखर, जिस तरह से आज उसने प्रेशर लिया, और ओडीआई में क्या है, आप थोड़ा डॉट बॉल्स खेल सकते हो, ये उसके बेनिफिट में जा रहा है। हमने कई बार देखा है T20 में शिवम दुबे फंस जाता है किसी दिन, बट आज उसने बहुत सारे डॉट्स खेले, लेकिन 2 बड़े सिक्सेस भी मारे। तो ओडीआई इज दैट अदर देन हसरंगा उसने किसी को मारा है क्या? आई कंप्लीटली आते से। ओके तो बिकॉज़ आई कांट ट्रस्ट हिम अदर देन ही इज अ कंप्लीट स्पिन बॉल प्लेयर है वो, कंप्लीटली स्पिन बॉल प्लेयर है। पहली चीज। दूसरी चीज, आज का सबसे फेवरेट मोमेंट मेरा पूरे मैच का वो था जब वो दूसरा कौन सा ओवर करने आया था, चौथा या पांचवा ओवर करने आया था शायद, एंड द फर्स्ट ही बॉल्स एंड ही गेट्स अ विकेट। एग्जैक्टली, कुशल मेंडिस का विकेट लिया। ये भाई बॉलर भी है, अच्छा। मैं वही बोलने वाला था, अरुण ने बोल दिया। मैं वही कुशल मेंडिस का विकेट के बारे में बात कर रहा था एक्चुअली। करेक्ट भाई वो बहुत बड़ा विकेट था उस समय, क्योंकि they were having a good partnership actually उस समय। कुशल मेंडिस से डिसअपॉइंट करता है यार। याद है मतलब वर्ल्ड कप में उसने कैसे स्टार्ट किया था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 75 बॉल में 120, और उसके बाद फिर सारे मैच फ्लॉप। और अभी भी बड़ा प्लेयर है, बट बहुत इनकंसिस्टेंट है। बट दुबे के पॉइंट पे मैं बोलूंगा कि देख, यहाँ पे ना एक्चुअली रिंकू अगर होता दुबे के जगह, तो ही वुड हैव फिनिश्ड इन अ मच क्लिनिकल मैनर, हो सकता है, क्योंकि रिंकू, बट वही है, बस बॉलिंग के लिए ही दुबे को लिया गया है कि वो बॉलिंग करवाने लायक नहीं है, वो अलग पॉइंट है ना। जबकि आज किसका ओवर कवर अप किया इन्होंने दुबे को यूज करके? आई थिंक सिराज का ओवर कवर अप किया। आई थिंक सिराज डिडंट बोल द फुल कोटा। तो ठीक है, बट मतलब कि यही है ना कि सिराज अगर खेल रहे तो तुम्हें दुबे को खिलाना पड़ेगा। बट आज बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप थी। आपने बिश्नोई की जगह सुंदर भी खिलाया, वो भी एक बैटर है। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप थी, चेज हो जाना चाहिए था। एक पार्टनरशिप चाहिए थी मिडिल में थोड़ी बड़ी, जो मिल नहीं पाई। एंड वेला लगे को मैन ऑफ द मैच दिया। एक्चुअली मैं सरप्राइज हूं, क्योंकि मुझे लगा शायद हसरंगा को देंगे। उसने नहीं वेला लगे, वेला लगे को जाना था।
बैटिंग के भाई Absolutely. he scored 67 आउट ऑफ nowhere. मतलब ये लोग तो Nowhere. ये बात Correct. 150 200 भी नहीं पहुंचने वाले थे. वेला लगे ने ये पूरा मैच बनाया है और उसके बाद रोहित का विकेट लिया है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट. हाउ कैन यू इवन से इज नॉट मैन ऑफ द मैच? A क्या भाई, 21-year-old बहुत guy बड़ा doing गलती किया all तूने. this is crazy. Is Yeah. crazy. एंड ही टुक मोर विकेट्स आल्सो. आई थिंक गिल का भी विकेट उसी ने लिया ना. गिल रोहित दोनों का विकेट लिया है. वो दोनों ही तो खत्म कर रहे थे मैच. या तो वहां पे तो पूरा मैच उसने टर्न अराउंड किया है, मतलब बैटिंग में भी एंड बॉलिंग में भी. अगर एक में भी टर्न अराउंड करता Correct. तो भी वो शायद मैन ऑफ द मैच हो जाता, बट दोनों Correct. में Correct. उसने नो टर्न अराउंड करेक्ट कर करेक्ट. दिया मैच को. Yeah. अच्छा, Yeah. बाय द वे किसी ने नोटिस किया था जब वो शिवम दुबे ने चौका मार के टाई किया था तो विराट को देखा था बिल्कुल ऐसे गंभीर को पकड़ रहा था ड्रेसिंग रूम में और पूरे टाइम साथ बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे. तो वो भी एक अलग ही वाइब है जिस तरह से ये दोनों अभी बॉन्ड करते हुए दिख रहे हैं, विराट कोहली एंड गौतम उसी के गंभीर. बेसिस पे प्रमोशन निकाल दिया पूरा. पूरा प्रमोशन तो उसी के बेसिस पे निकाल दिया ओडीआई का. गंभीर, कोहली एंड ऑल दोस. कल भी बहुत सारे मीडिया में ये कवर हो रहा था कि उन दोनों की पिक्चर्स मैच के पहले साथ में डिस्कस करते हुए, हंसी मजाक करते हुए. आई वाज सरप्राइज्ड दैट रियान पराग आज नहीं खिला. एक्चुअली गंभीर का फेवरेट प्लेयर क्योंकि मुझे लग रहा था उसको भी खिला ही देगा कहीं ना उसने ग्रुप में कमेंट किया था ना कि अरे गंभीर देख रहा है सिराज कितना मैच्योरली बैटिंग कर रहा है. अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज आज क्या रही कि मतलब मैंने अभी हाल ही में एक वो किया था रिव्यू अबाउट द T20 सीरीज, ठीक है. तो वहां पे मैंने ये बोला था कि गंभीर इज वेरी क्रिएटिव एंड ही थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स. एंड द मोमेंट शिवम दुबे केम टू बोल, आई फेल्ट द सेम कि वो क्रिएटिव तो है और वही बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं. अब सेकेंड ओडीआई में ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि शायद कुछ और नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी. नहीं, आज एक और नया चीज अरुण ये था कि वॉशिंगटन सुंदर कमिंग एट नंबर 4. तो एक चीज मुझे क्लियर दिख रहा है, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो जो एक है ना, क्योंकि इंडिया इज मिसिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड एट द ओपनिंग. रोहित और गिल और उसके बाद कोई भी लेफ्ट हैंडर नहीं है, बस नीचे में लेफ्ट हैंडर्स है. पहले जडेजा रहता था या वो भी था. तो अब क्या कर रहा है ये, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू डिसरप्ट दैट राइट हैंडर्स का पूरा वो है ना, स्पेशली श्रीलंका जैसे जहां पे स्पिन ऑफ स्पिन इतना ज्यादा चल रहा है. और ये अकेला धनंजय भाई, इसने इतनी फाड़ बॉलिंग की है. ये लेफ्ट ऑफ स्पिन लेग स्पिन गुगली तीनों ही डाल रहा था. जो इसका मन कर रहा था वो डाल तो था. रहा आज था. हसरंगा के लिए भी सूट कर रहा था पिच. अकीला भी अच्छा बॉलर है आज, टफ तो था. अच्छा बाय द वे ये दो एक्सपेरिमेंट एडिशन बहुत फैंटास्टिक थे. 15-20 अकीला साल और पहले भी होता था ये एक्सपेरिमेंट, जब ग्रेग चैपल इरफान पठान को आगे भेजता था सहवाग सचिन के बाद नंबर 3 पे. वैसे ही आज फील आया जब सर को भेजा. मेरा तो हाईलाइट ये था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ओडीआई वर्ल्ड कप का रिकैप देख रही हूँ जिसमें रोहित शर्मा पूरा मस्त खेल रहा है. बाकी लोग एज यूजुअल पता नहीं क्यों आए वेकेशन मनाने. द सेम थिंग. एंड नहीं, सेकंड लोग नहीं आए थे, वो पूरा ग्राउंड खाली था. वो आज ऐसा लग रहा था कि मतलब एक्टिविटी क्यों हो रहा है, मतलब. हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट दिखा रहे थे कि ओडीआईज में ओपनिंग में सॉरी पावर प्ले में रोहित शर्मा एज अ कैप्टन 116 का स्ट्राइक रेट, बट रोहित शर्मा एज अ प्लेयर जो 2014-2016 का जो एरा था तब ही यूज्ड टू स्ट्राइक एट ओनली 70. वो स्लो स्टार्ट देता था धवन के साथ. एक्चुअली वो पार्टनरशिप डिफरेंट था ना प्रतीक. वहां पे धवन यूज्ड टू बी द एग्रेसर, तो वो रोल्स डिफाइंड थे डिफरेंटली. एंड वो तो हम भी जब देखते थे कॉलेज में हम भी इरिटेट होते थे कि रोहित शर्मा स्लो स्टार्ट करता है. एंड सेकंड जो रियलाइज किया कि श्रीलंका के पर्सपेक्टिव इज लाइक उनका पथुम निशंका इज द वन हु विल ऑलवेज प्ले वेल. जिस दिन उसका खराब दिन गया पूरा बर्बाद, और कोई एक मैजिकली अच्छा खेल देगा. टुडेज केस इट वाज वेलालागे. वरना उनका किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है खेलने को, किसी का भी मन नहीं है एक्चुअली जो खेलने पथुम निशंका आउट हुआ ना, मतलब दैट वाज अ ब्यूटी ऑफ अ बॉल बाय वॉशिंगटन सुंदर. मैं उस बॉल के बारे में मतलब जस्ट बोलना चाहता हूँ. आज भी 2 विकेट लिया शायद सुंदर. हाँ, अक्सर दैट टर्न्ड अ लॉट एक्चुअली. मतलब वो बहुत टर्न हुआ. और मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था निशंका ने कि बॉल इतना टर्न होगी. और तभी इनको पता चल गया कि ये स्पिनिंग पिच तो रहेगा ही. और तब इन्होंने इतना एक्साइटेड हो गए ये लोग, गिल को बॉलिंग दे दिए. तभी उन्होंने गिल को एक्चुअली बोला कि ये तू भी बॉलिंग कर ले, बट वो 14 रन खा गया. तो देन देयर एक्साइटमेंट केम डाउन अ लिटिल. बोले कि हाँ भाई ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे, तो एटलीस्ट गिल को तो नहीं देना चाहिए था. एंड आई जस्ट ओनली फील बैड कि गिल खेल पा रहा है, जायसवाल नहीं खेल पा रहे. बट या वो तो हमारे बस वेरी 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 सैड वो तो है वेरी सैड क्या अबाउट करें. और इवन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई इज जयसवाल नॉट प्लेइंग? नॉट प्लेइंग बिकॉज ही इज नॉट इन स्क्वाड में नहीं लिया. पॉलिटिक्स वगैरह इनमें नहीं है ना. नहीं, पॉलिटिक्स का बात यही बात है कि गिल इज द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट.
इसका आंसर यही है, For us, गिल इज द for प्रिंस us. ऑफ इंडियन हाँ, क्रिकेट। गिल नहीं, गिल शिखर हाँ, भाई, गिल है, शिखर गिल भाई, है, यस I, यस यस। please, हम्म। Manish, go ahead, नो yeah, नो नो, हाँ, करेक्ट करेक्ट, गिल मतलब पीआर टीम जैसे आई स्ट्रांग है थिंक, ना भाई उसकी, उसका फेस ज्यादा उनको हाँ लगता है हाँ कि हाँ, चलेगा, बस यही आई एम, हाँ, हाँ, प्रतीक भाई, यस यस उसकी यस PR सॉर्टेड है, नेक्स्ट पर्सन टू बी आफ्टर कोहली टू सक्सेसर बी ऑफ कोहली। लाइक यस यस the king of the cricket in India is gonna यस। be Gill. भाई वो उसको वैसे ही आईपीएल में प्रमोट आप कर रहे हैं, देख लो BCCI उसको 200 वैसे ही स्ट्राइक प्रमोट रेट पे कर रहा है। ओपन कर रहे हैं सब, पर फॉरेनर कमेंटर्स वो गिल को प्रेस करते रहते हैं जो 100 स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा है, उनको पैसा भाई खिलाया गया है उसकी तारीफ करने के लिए। भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ना प्लेयर्स को बनाया जाता है, मतलब यू हैव टू, ये क्या करते हैं ना, एक इमेज क्रिएशन हो होता रहा है, है। मतलब मीडिया प्लस बोर्ड प्लस सब मिलके ना एक प्लेयर को हाइप अप करते हैं, ठीक है। अब ऐसा श्रीलंका आज इनफैक्ट एक बात चल रही थी श्रीलंकन क्रिकेट में कि ये जो स्टेडियम है आर प्रेमादासा स्टेडियम, इसमें चामिंडा वास का कितना अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन सब लोग उस टाइम पे, वही कोई कमेंटेटर बोल रहा था उस समय, चामिंडा वास यूज्ड टू बी द अनसंग हीरो, नॉट द मेन हीरो, क्योंकि सारा फोकस मुरलीधरन पे था। मुरलीधरन पर। तो वो, क्योंकि श्रीलंकन मीडिया ने बनाया नहीं चामिंडा वास को, बट वहीं पे स्कॉट स्टेरिस बोल रहा था कि इंटरनेशनली तो हम ज्यादा रेस्पेक्ट चामिंडा वास को करते भाई थे। वो पावर प्ले में मैच आज खत्म हम करता आज था हम बात नहीं श्रीलंका कर के रहे लिए। थे, आज हम बात नहीं कर रहे थे चामिंडा वास, वो मैंने मैसेज भेजा था, उसमें बात यही करते ना कि मार्वन अटपाटू, अरविंद हाँ डिसिल्वा, हाँ रणतुंगा एंड चामिंडा वास, हाँ, चामिंडा वास का नाम निकला, वो चामिंडा वास एक्चुअली चामिंडा वास था भाई, ड्रेड नहीं करते थे, नहीं, सहवाग विकेट जब लेके जाता था या ना वो नहीं वो या, हमेशा इंडिया को जल्दी एक विकेट झटका देता था, मतलब but I'll इतना be फिट very है। honest, I'll be very honest, मैं तो as a normal person like a चामिंडा वास and मुरलीधरन को I take in high regard, but गिल कहाँ से यार, मतलब किस बेसिस पे क्या किया है जो उसको इतना हाइप कर रहे और हैं, कुछ बहुत करेगा तो है नहीं। शॉकिंग था उसका करेगा करेगा एलिवेशन टू वाइस कैप्टनसी इन ओडीआई क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट, ये एक्चुअली बहुत एग्जैक्टली शॉकिंग था। और इंग्लैंड आई थिंक सीरीज ये में एग्जैक्टली, याद है होना उसको नहीं चाहिए कितना था। मौका दिया, जब तक वो सेंचुरी नहीं किया उसको मौका मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा, फेल होने पे इंग्लैंड इंडिया ठीक के। है, घटिया ठीक है, आईपीएल तुम्हें के हार्दिक बाद आपको पांड्या, तुमने T20 बोला कि वाइस हार्दिक कैप्टन, पांड्या हाँ इज नॉट ऑन द पार्क, तुमने ये बोला ना कि हार्दिक पांड्या इज अगर नॉट ऑन द करने पार्क, तो भाई गिल ने T20 तुम्हारा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ही नहीं था ना गिल, तो तुम्हारा तो हम्म, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ही नहीं था गिल, ओडीआई वर्ल्ड कप में गिल रिजर्व में वाज था। वेरी बैड, ठीक है। क्या तुमने उखाड़ा सिर्फ पता एक नहीं। टेस्ट सीरीज को रिवॉर्ड किया जो इंडिया इंग्लैंड का बेसबॉल, एक वो टेस्ट जो मैच, सीरीज था इंडिया होम पे मैच जीती थी, वो मैच सीरीज को तुमने ऐसा रिवॉर्ड किया, उसमें भी जायसवाल आउट परफॉर्म गिल, या तो या जायसवाल के लिए ओडीआई डेब्यू भी नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास ट्रू, गिल के पास वाइस कैप्टनसी है दोनों फॉर्मेट में, ये या डिफरेंशिएशन, ये डिस्क्रिमिनेशन है एंड मतलब। I'll be just I'm trying to bring out something which might not be true, but still मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे छोटे छोटे बातों से ना people like जायसवाल जो बहुत ही वेरी पुअर अपब्रिंगिंग से आए, उन पे अफेक्ट होता होगा यार, मतलब इतना खेल के आते हैं फिर भी नहीं नहीं देवर नहीं लाइक, नहीं नहीं आई नहीं, डोंट पूरा अपब्रिंगिंग, नो। पूरा अपब्रिंगिंग नहीं है उसकी, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, उसने बिकॉज ऑफ सम हम्म, रीजंस ही स्टेड विद या जस्ट अंकल स्ट्रगल, हु या वाज या सम बैड करेक्ट, डेज। करेक्ट, और या 13 दिन में 13 मैचेस में, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, 13 दिन में 1000 रन उसने बनाए, तो आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ द ओडीआई टीम, यही तो दैट्स आयरनी है व्हाई। भाई कि इंडिया का ऑल फॉर्मेट में हाईएस्ट स्कोरर चल रहा है इस साल, ओडीआई टीम में जगह नहीं है उसके लिए। और गंभीर तो लेफ्ट राइट चाहता है, हर जगह लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो ओपनिंग में क्यों हाँ। नहीं कर रहे लेफ्ट राइट, रोहित और जायसवाल को करवा दे हम्म भाई ओपनिंग, लेकिन गिल को हो ड्रॉप भाई ये सकता है करवा इसका मैसेज दे। आगे रीजन तक हो जाना चाहिए बिकॉज भाई, वी वांट टू सी ही इज जायसवाल फ्रॉम इन द गिल, नेक्स्ट और ओडीआई एक और सीरीज। चीज याद रखो, गिल गॉट हिज प्रेफर्ड टेस्ट नंबर ऑफ नंबर 3, यस he asked for अच्छा, यस that position and he got that number, he started out as an opener, failed as an opener, jaiswal succeeded as an opener, Gill got his wish, he वही batted तो at बात number है ना, 3 गिल और केएल फोन and पे then he बताते हैं उनको found अगले some मैच में कहाँ moderate खेलना success, है। it's not कि he's been killing it, ठीक है। और राजस्थान टीम का है ऑस्ट्रेलिया, ना, इसलिए शायद गंभीर उसको वो नहीं कर रहे, प्रोबेबली, आई डोंट नो। माय और कंक्लूजन गंभीर इज को के ये कल्चर राहुल, खत्म करना चाहिए, आई होप मतलब he नो नो, does it in the future। केएल राहुल एंड गिल आर लाइक मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मुझे तो उनके स्टाइल ऑफ ये से वही लग रहा है सीरियसली, अपने शेल में चले थोड़ा जाते हैं, अपने रन ज्यादा देखते सामने हैं ये वाला लोग, यही अगर सबसे खेल बड़ा रहा है, हाँ प्रॉब्लम है उनका, वो हाँ अपना हाँ, बस क्रिकेट बस देखते हैं। अपना, हाँ हाँ। चलो यार गाइस, लेट्स बट कैप ऑफ, ओलंपिक्स के बारे में भी डिस्कशन करना है। तो अगला मैच संडे को है कोलंबो में। शिखर, एनी लास्ट कमेंट्स यू वर सेइंग? नहीं, बस मेरा यही चीज है यार, श्रीलंका थोड़ा हाई टारगेट्स देना तो ज्यादा मजा आएगा,
मैं नहीं चाहता हूँ ये मैं तो पूरे चाहता हूँ सीरीज भाई में एक मैच में 220 कुशल मेंडिस और 220 के निशंका दोनों टारगेट देते सेंचुरी रहे। मार दे तो थोड़ा अच्छा मजा आएगा। और मुझे लगा कि आज गलत डिसीजन था एक्चुअली टॉस में फर्स्ट बैट करना, जो श्रीलंका ने जो डिसीजन लिया था ना वो गलत, लेकिन वो एक्चुअली एंड में ये पिच सही वो प्रूव हो वाली गया। पिच है 1996 सेमीफाइनल कोलकाता वाली पिच थी, ये और खराब होते गई रात में भी, और खराब हो गई ये पिच। तो मे बी इट वाज अ गुड डिसीजन अल्टीमेटली बाय श्रीलंका। फिर भी मुझे लगता है चेज ही करना चाहिए, जो भी टीम टॉस जीते उनको चेज करना चाहिए। इट्स जस्ट इंडिया स्क्रूड अप अ लिटिल बिट टुडे, वो बहुत स्लो पार्टनरशिप हो गया, थोड़ा मोमेंटम वहां पे मुझे लगता है वो 50 रन बने ठीक है, 57 रन बने, लेकिन वहां ज्यादा भी बन सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो मे बी थोड़ा वहां पे मिस हो गया मुझे लगा। Yeah, but a great day. No one lost at the end, so let's look at the next इट्स अ match. रेयर थिंग टाइड ओडीआई, मतलब Yeah. भाई इट्स वन ऑफ द रेयर डेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो डेफिनेटली लव टू कवर इट। 10th ever that India Yeah. has tied with somebody. Yeah, the And that record also is 10th one ever run है। in one For run in India. 14 balls. मतलब मतलब क्या है, मतलब हार, इंडिया has lost it. Yeah. Yeah, हर्षदीप को भाई थोड़ा मुझे सा तो तो क्या लगता है पता है, देखना टर्निंग था। पॉइंट है गिल को जो एक ओवर दिया ना जिसमें 14 रन हाँ, दिए, वो मुझे भी ओवर लग अगर रहा है नहीं देता गिल को और वॉशिंगटन सुंदर या सिराज को ही देता किसी को भी देता, तो 2-3 लोग के ओवर्स बचे। तो इंडिया आज टाई नहीं करती, इंडिया आज मैच जीत जाती। वो भाई नहीं, जब सुंदर सूर्य 4 कुमार पे आ रहा यादव है वो बॉलिंग कर सरप्राइजिंग नहीं सकता है, है, गिल को ओवर नहीं मिलना चाहिए था पर। नहीं जब सूर्य कुमार यादव बॉलिंग कर सकता है, रिंकू सिंह बॉलिंग कर सकता है, तो कोई भी मतलब बॉलिंग कर सकता है फिर ऐसा। गिल इज लाइक मेरे को ओवर नहीं दिया मैं भी आज ओवर डालूंगा। मैं तो वाइस कैप्टन हूँ, मुझे तो चाहिए ही मतलब आई एम सॉरी, कैप्टन कर लिया वाइस। हम लोग थोड़ा सा हम जा रहे हैं उस तरफ, बट उस दिन का जो मैच था ना, दैट एक्चुअली नीडेड स्पिनर्स टू बोल देन अ पेसर्स। तो रिंकू और सूर्य का आना बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। दे कुडंट हैव गिवन आफ्टर खलील्स अट्रोशियस ओवर, बट दिस इज नॉट डन। आप और किसी को भी सिराज पे भी उठा के नहीं कॉन्फिडेंस खेल नहीं था डेथ सकते। ओवर में, डेथ में बोलते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बट या एनीवेज। चलो, थैंक यू गाइस, सी यू ऑन संडे आफ्टर द सेकंड ओडीआई। या थैंक यू थैंक गाइस। यू।